Assalamu alaikum everyone. Now I'm recording another lecture to deliver a presentation on another problem. Before that we did exercise 31.1 which was a contribution on a public good, and now I'm moving on. बाकी जो चीज़ें हैं you would have to do it yourself, and guessing 2/3 of average I'm leaving on you, and then I'm going into an exercise which is 32.2 voters participation, and then after that we'll go with the choosing a route 32.3. So let me take this part and let me copy it. Copy text. Let's see क्या copy होता है वहाँ पे on my notebook ताकि question हमारे सामने आ जाए. Oh yes, we have everything here. So let's delete this extra part. I don't need this. ये दूसरी question है. And let's have some arrangement of this question. Exercise 32.2 ये है थोड़ा सा इसको मैं डल ठीक करती हूँ. Voters, two candidates A and B compete in an election. One of the N citizen K supports pay A and M N minus K supports B. Each citizen consider इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ पहले. And ठीक है. और ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. A citizen who abstained from receiving the pay of 2, ये लिखा हुआ है. If ये सारा मिटा देती हूँ. Let me check. What is it? A, B, C. 0 is less than 1 is less than K. Okay. मैं इसको रीड करती हूँ पहले आपके लिए. ये वाला पार्ट जो है ना इसको मैं I'll tell you कि क्या करना है. Del. Let's read the question. Voters versus two candidates. यहाँ पे दो candidates हैं, candidate A and candidate B. They are competing for an election, and of the N citizens, total number of citizens कितने हैं? There are N. उसमें से K जो है वो they support candidate A, and M जो है जो कि N minus K बनता है they support candidate B. Each citizen decides whether to vote or not to vote. मतलब दो ही options हैं उनके पास. Whether to vote, लेकिन जो voting cost है वो है C. तो ये देखो पढ़ लिखा है each citizen decides whether to vote at a cost for the candidate she supports or to abstain. So there are two actions they could have played. One, to vote or not to vote. लेकिन voting की एक cost है जो कि आगे बताएंगे. A citizen who abstains receives the payoff of 2 if the candidate she supports win. Now look, there is a possibility that you are not voting but your candidate is winning. In that case, the payoff you will get is 2. And 1 is a payoff. 1 if this candidate dies, मतलब you are not voting and your candidate is tie, so in that case you'll get the payoff of 1 for the first place, and 0 if this candidate loses. And this is all about that once you are not voting, then what payoffs you're going to have. 2 in case if your candidate win, 1 in case if your candidate is tie, and 0 in case of if your candidate loses. A citizen who votes receive a payoff of 2. अच्छा, अब इसके बाद जो है जरा यहाँ पे से देख लेते हैं ताकि जो कंफ्यूजन है खत्म हो जाए. थोड़ा सा मेरे ख्याल में a citizen who abstain ये सारा हमने कर लिया है. ठीक है जी. A citizen who vote receive a pay of 2, ये जो है ना वो जो खराब था वो ये पार्ट है. A citizen who votes receives a pay of 2 minus C, 1 minus C और minus C in the cases in these three cases. अब जो vote, like there were two options ना. One is to abstain and second is to vote. If you abstain, there could have been the three possibility: your candidate win, tie or lose. And if you vote, then there could have been three possibility: your candidate win, tie or lose. In case voting जो cost है वो C है, और जो C है वो 0 और 1 के दरमियान एक number है. तो if you vote, you would have to face a cost of C, no matter your candidate win, tie or lose. So winning की जो outcome है वो है 2, tie की outcome है 1 और losing की outcome है 0. And if it is with voting, then you know the net outcome has to be subtracted C from the gain you are getting, because C is the cost of casting a vote. So in case if you are voting, first option your candidate win, you will get 2 minus C, tie 1 minus C and lose is minus C. ठीक है, ये है सिचुएशन जो गेम की है. अब क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं ए पार्ट में कि ये पार्ट्स हमारे वहां पे भी बहुत अच्छे से लिखे हैं. सो लेट्स गो बैक.
ए पार्ट में ये पूछते हैं फॉर पहली सिचुएशन फॉर के इज इक्वल्स, रिमेंबर व्हाट वाज के इज द नंबर ऑफ citizens who are supporting candidate A. And what is M? M is the number of citizens who are supporting B. So the first case where we are talking about K is equals to M is equals to 1. So they are assuming then the whole society is containing two people. One is supporting candidate A and another is supporting is candidate B. And total number of people who are playing this game is 2. तो अगर इस तरह की situation हो तो question है is the game the same except for the name of the action as anyone considered so far in this chapter. So you will have to present this game in a strategic form and then you will have to see if it is exactly like one you have done so far earlier out of the games जो कि आपने पहले की हुई हैं उनमें से किसी से resemble करती है. This is our first part. Moving on to the second part, we have for K is equals to M. Now, what is this? This is a situation where the candidate supporting A is equals to candidate supporting B. Yeah, अच्छा. अब ये क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि society में even number people हैं. Why? Because अगर odd number people होंगे तो फिर it's not possible to get this case where K is equals to M. So if you just have even number people, तो it could have been 1, 1 जो कि हमने पहले कर लिया है. So we will not talk about it. Then we can talk about 2 and 2. चार बंदे हैं, दो इसको सपोर्ट करें दो उसको करें, एंड देन इट कैन बी 6, इट कैन बी 8 एंड सो ऑन. सो अब इस तरह के केसेस के लिए फाइंड द सेट ऑफ Nash इक्विलिब्रिया. अच्छा, Nash इक्विलिब्रिया का मतलब है दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैव मोर देन वन इक्विलिब्रियम. और फिर आगे ब्रैकेट में डिटेल दी हुई है एंड देयर इज अ क्वेश्चन यू विल हैव टू थिंक अबाउट व्हाइल आंसरिंग दिस पार्ट. वो क्या चीजें हैं? इज द एक्शन प्रोफाइल इन विच एवरीवन वोट्स इज अ Nash इक्विलिब्रियम. So actually you will have to work all voting, is it the Nash equilibrium? Is there any Nash equilibrium in which the candidate tie and not everyone votes? ये दूसरा वाला है. Is there any Nash equilibrium in which one of the candidate wins by one vote? Is there any Nash equilibrium in which one of the candidate wins by 2 or more votes? And C part क्या है? What is the set of Nash equilibrium for K? ये आगे क्या है? ये is less than M है. ये फिर खराब हुआ है. Let's go back here and see कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या है. ये C पार्ट है. What is the set of Nash equilibrium if K is less than M? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और हमने इसको आंसर करना है. ठीक है, और आंसर करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपने सबसे पहले इस केस को आपने इसको छोटा कर लेना होता है. मतलब यू डोंट हैव टू पैनिक लुकिंग एट के व्हाट आई कैन डू बिकॉज़ इट्स बिकमिंग अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. नो, you should not do this. आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को पहले you just make it small. तो ये फालतू चीजें मैं निकाल देती हूँ. Okay, now we have a clear cut question in front of us and let's solve this question starting with the basic cases and then we'll moving on to the complicated cases. All right, so let's start. Let's say I'm starting with the first case. Now let me present the situation here in front of you. And what we are saying, this game is called voter participation and the situation is that let me have some space. Yeah, it's the space available. Now what is the situation कि एक सिटी है जिसमें there are n citizens are there. ठीक है, n citizens. ये सारी ज्यादा citizens की नंबर ऑफ n प्लेयर्स की गेम है जिनको हम सब केसेस में डिवाइड करके इजी बना लेते हैं. और वहां पे दो कैंडिडेट्स हैं. कैंडिडेट्स का नाम है, और ये कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं? ए और बी. अब सिचुएशन ये है कि ए के भी कुछ सपोर्टर हैं और बी के भी कुछ सपोर्टर हैं. टोटल एन सिटीजन में से सपोज करो कि के जो है ना दे सपोर्ट ए. ठीक है, तो बाकी कितने बचे? टोटल एन थे तो एन माइनस के आर द रिमेनिंग दे सपोर्ट बी. यहां तक समझ में आ जाएगा, सिंपल है. अच्छा, गिवन के अब ये हमें अंडरस्टैंडिंग है. अब दूसरा क्या इंफॉर्मेशन, ये पहली इंफॉर्मेशन है. दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि देर आर 3 पॉसिबिलिटीज. दे वोट ओके एंड दे डू नॉट वोट. एक्शंस क्या है इनके पास? एक्शंस है वोट जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डू नॉट वोट जिसे अब्सटेन कहा हुआ है. सो आई विल से डू नॉट, डी एंड वी, डू नॉट वोट. ठीक है, सो गिवन दिस व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है कि इफ इसको तो बंद ही कर लेते हैं. डू यू नीड इंटरनेट? You need it? Okay.
ओके, ऑलराइट। सो अच्छा, सो पहला है कि हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं जिनको के पीपल आर सपोर्टिंग ए एंड बी एन माइनस के पीपल आर सपोर्टिंग बी। द एक्शन एवरी सिटीजन कैन डू इज टू वोट और नॉट टू वोट, यानी वी और डी एंड वी, ये दो एक्शंस हैं। तीसरी चीज ये है कि आउटकम क्या आ सकते हैं, यानी कि जिसे हम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग कह देंगे या आउटकम जो भी है। there are different ways of presenting the strategy profiles या preference ordering in different games। तो इस गेम में क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि आउटकम हो सकता है कि जिसको आपने वोट किया हुआ है वो वाला कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट विन भी कर सकता है और आपका कैंडिडेट लॉस भी कर सकता है, और इन विनिंग और लॉस, और तीसरा है कि वो टाई भी हो सकता है। अब ये जो विन लॉस और टाई के सूरत में आपको क्या मिलेगा, अगर आपने वोट किया है, इफ यू वोटेड तो उसकी कॉस्ट होती है सी हम कॉस्ट को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस सी उसकी कॉस्ट है। और अगर आपने वोट नहीं किया, डू नॉट वोट है, तो कोई कॉस्ट नहीं, जीरो कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट आपने दिमाग में रखनी है। अब नेट आउटकम क्या है, विनिंग का आउटकम है 2, ठीक है, और लॉस का है जी 0, और टाई का आउटकम है 1। लेकिन अगर आपने वोट किया है तो आपका जो नेट आउटकम बनेगा दैट वुड बिकम 2 माइनस सी। इन केस ऑफ लॉस इट बिकम 0 माइनस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस सी। और अगर आपने टाई, अगर आपका कैंडिडेट टाई हुआ है तो ये 1 माइनस सी। तो ये 3 आउटकम्स है। और डू नॉट वेट में अगर आपका कैंडिडेट, ऐसा भी होता है कि आपने वोट नहीं किया और आपका कैंडिडेट विन कर जाए, तो इस केस में यू विल गेट 2, इन केस ऑफ लॉस यू विल गेट नथिंग, एंड इन केस ऑफ टाई यू विल गेट 1। तो ये वो है प्रेफरेंस ऑर्डरिंग। ठीक है जी, अब हमने गेम को यहाँ तक समझ लिया है। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि हम इस गेम को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे जो कि इसके अंदर पार्ट्स में पूछे हुए हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा हुआ था, उसके अंदर पूछा था कि जी बताएं कि अगर k और m बराबर हो जाए, 1 के इक्वल हो, तो बताएं इसमें नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा और ये क्या किसी और गेम से मैच करेगी कि नहीं करेगी। तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस केस। सो केस नंबर 1, k is equals to m is equals to 1, मतलब one person support A and one person is supporting B. How many persons are playing in this game? Only 2. तो n क्या है यहाँ पर 2। तो मैं इसको जरा उसी फॉर्म में ले आती हूँ। There are two ways, एक है player 1 है इसमें, एक player 2 है। ठीक है, इसको आप वो स्ट्रेटेजी प्रोफाइल में भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ताकि जरा पिछली गेम से इन्होंने कहा ना कंपेयर करें, तो इस तरह से पिछली गेम से कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम स्ट्रेटेजिक फॉर्म में लिखें, क्योंकि पिछली सारी गेमों में हमने ये स्ट्रेटेजिक फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आई विल बी डूइंग दिस वे सो दैट वी कैन कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन। सो व्हाट प्लेयर नंबर 1 कैन डू, ही कैन वोट, ही डू नॉट वोट, दो पॉसिबिलिटीज है ना। इसी तरह से प्लेयर नंबर 2 could have gone for vote and do not vote। ठीक है जी। अब if suppose they both are voting, so what would be the result? So I preferred if you could have answered me, but right now I have to answer myself। दोनों अगर एक एक वोट दोनों का आया है तो रिजल्ट होगा टाई। इसके अंदर इस केस में इस वाले बॉक्स में रिजल्ट आएगा टाई। अच्छा, अगर इस वाले बॉक्स में हम चले जाएं तो प्लेयर नंबर 1 ने वोट किया, प्लेयर 2 ने वोट नहीं किया, तो हाउ मेनी votes are given to candidate A? 1. How many votes are for candidate B? Nothing. So who is going to win? Of course player number 1। तो player number 1 यानी A जो है वो विन कर रहा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसने डू नॉट वोट किया और प्लेयर 2 ने वोट कर दिया। किसका कैंडिडेट हैज वोट? प्लेयर बी को वोट मिला हुआ है, तो इसमें बी विन करेगा। ठीक है जी। और ये जो लास्ट वाला है डू नॉट वोट, इट इज अगेन अ टाई, nobody is getting vote। So look at the first outcome in which the both are tie and the both have voted। ठीक है जी, बोथ के दोनों के प्लेयर्स जो थे उनको एक एक, दोनों के कैंडिडेट्स को एक एक वोट मिला हुआ है, तो रिजल्ट इज टाई एंड बोथ हैव वोटेड। सो टाई विल एंड इन एन आउटकम विच इज इक्वल्स टू 1। हमने पीछे बताया हुआ था विनिंग में 2 है, टाई में 1 है और लॉस में 0 है, लेकिन वोट के साथ कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो प्लेयर नंबर 1 विल गेट 1 माइनस सी एंड प्लेयर नंबर 2 विल गेट 1 माइनस सी। एंड रिमेंबर सी जो है वो एक नंबर है जो 0 और 1 के दरमियान है, यानी एक फ्रैक्शन है ये। ठीक है जी। उसके बाद आप ये वाला जरा देखो, ए विन।
तो प्लेयर 1 ने वोट किया और उसका प्लेयर विन कर गया. विनिंग इज 2 बट सिंस ही हैज वोटेड सो 2 minus c. And do not win since his player lost but he has not voted, so that is nothing but 0. ओके इसका प्लेयर जो है वो इसका कैंडिडेट भी लूज हो गया यहाँ पर, लेकिन उसने वोट नहीं किया. लुक एट हियर प्लेयर नंबर 1 हैज नॉट वोटेड, प्लेयर नंबर 2 हैज वोटेड. प्लेयर 1 का कैंडिडेट लूज कर गया और प्लेयर नंबर 2 का कैंडिडेट विन कर गया. सिंस ही हैज नॉट वोटेड सो 0 इज द outcome he will have, and this person since he has voted and he win, so 2 minus c is the outcome. In this case both of them have not voted, so there is no cost of voting, but the result is tie, so each one will get 1 and 1. Hope that you are clear with this. अब इसका जरा Nash equilibrium find out करें. हम क्या करते हैं, हम कॉलम को फिक्स करते हैं and then we compare first element. अच्छा अब ये अब मुझे बताइए कि 1 minus c और 0 में से क्या बड़ा होगा. रिमेंबर c एक फ्रैक्शन है 0 और 1 के दरमियान. सपोज कर लो c की वैल्यू है 0.3, तो 0.3 अगर है तो 1 minus 0.3 विल बिकम 0.7. अब 0.7 और 0 में क्या बड़ा है, ऑफ कोर्स 0.7 बड़ा है. सो 1 minus c इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, तो मैं इसके नीचे लाइन लगा लूंगी. सो इसी तरह से नाउ आई एम पिकिंग विद प्लेयर 2 फिक्सिंग विद डू नॉट वोट एंड आई एम कंपेयरिंग 2 minus c and 1. 1 के साथ अगर 2 minus c को कंपेयर करते हैं, c is a small fraction, let's say 0.3, so 2 minus 0.3 would definitely be greater than 1. So in this case this is the best strategy, the action player number 2 could player number 1 can play. अब हम करेंगे fix player number 1 को. So if I'm fixing this row like this and I'm comparing the player 2 outcomes, 1 minus c versus 0, of course 1 minus c is greater. And if I'm fixing do not vote here, so 2 minus c versus 1, 2 minus c is greater. So did you see one thing? What is Nash here? As you can see, the Nash is vote. ठीक है जी. एंड आउटकम क्या है इसका, पे ऑफ क्या है, इसका पे ऑफ हो रहा है 1 minus c and 1 minus c. ओके ये कौन सी वाली गेम को रिजेंबल कर रहा है, डू यू रिमेंबर दैट. देखो it is more like it's exactly like Prisoner's Dilemma if you look at it, क्योंकि best outcome क्या था 1-1, see this one, but they are reaching to the second best. ये first answer है इसका. और फिर इसके अंदर जो dominant strategy है वो है vote, यानी do not vote dominated strategy है. it's just like Prisoner's Dilemma. so answer क्या था, question क्या था कि अगर k is equals to m is equals to 1 हो तो result क्या आएगा. तो आपका आंसर क्या है, ए पार्ट का, ए पार्ट था आपका. ठीक है, इसका आंसर है कि जी मैं नीचे कर देती हूँ इसको थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट. या सो आंसर क्या है इसका, आंसर ये है इफ k is equals to m is equals to 1, Nash is all players would. एंड दूसरा है it resembles Prisoner's Dilemma, PD, because it ends up in second best solution. ठीक है, 1-1 बेस्ट था, इन्होंने 1 minus c 1 minus c डिलीट किया और बस ये काफी है इतना जवाब. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2b एंड लुक एट द पार्ट बी. पार्ट बी हो रहा है कि k is equals to m हो तो बताएं जी Nash equilibrium क्या होगा. और फिर ये आगे डिटेल में क्या पूछा हुआ है, क्या Nash equilibrium वो होगा जिसमें k बराबर है m के, या k लेस देन m है, या k ग्रेटर देन m है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो लेट्स सी इसमें क्या सोल्यूशन आते हैं. सो आई एम गोइंग बैक टू माय notebook. So B part, here we have B part. ठीक है जी, और वो क्या है, k is equals, let me check it, sorry मैं भूल गई, एक दफा और देखने दें. k is equals to m. now this was k is equals to m is equals to 1 और ये k is equals to m वाला केस है. मतलब क्या डिफरेंस है इस दोनों में, उसमें कहा है कि दोनों में k और m बराबर तो है लेकिन सिर्फ एक है, लाइक टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 है, लेकिन यहाँ पर k is equals to m है लेकिन नॉट इक्वल्स टू 1, बट इट कैन बी एनी नंबर. तो बराबर नंबर कौन कौन से सकते हैं, 1 is equals to 1, 2 is equals to 2. मतलब यहाँ पे वी कैन हैव लाइक कौन कौन से केसेस कि जब आपके पास है n की वैल्यू 2,
4, 6, 8 सारे इवन नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है जी। तो मैक्सिमम जो है देखो लास्ट अगर नाम नंबर n है, अगर n ऑड नंबर है ना, तो हम इस गेम में इवन नंबर्स को ले रहे हैं। तो व्हाट कुड हैव बीन द लास्ट इवन नंबर इन दिस केस? इट कुड हैव बीन n-1। ठीक है, तो ये मतलब गेम n-1 तक जाएगी। एंड इफ n इज इवन नंबर इटसेल्फ, तो गेम फिर n तक जाएगी। बट हमें इधर तक ले जाने की जरूरत नहीं होती, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम 2 से 3 केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड विल गेट द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट एज वेल। तो I have already done पहला वाला केस when n is equals to 2. Now I'll be moving with the next one in which I'll consider n is equals to 4 and n is equals to 4 वाला केस लेके भी ये पूरी गेम जो है ना, आई होप कि वो सॉल्व हो जाएगी। n is equals to 2, n is equals to 4, तो इसमें हम कहते हैं let's say assume 2 voters support A and 2 voters supports B। ठीक है, अगर 2 इसको करते हैं 2 इसको, तो हम अब इसमें स्ट्रैटेजी प्रोफाइल, यू नो दैट n इज इक्वल्स टू 4 है, तो हर प्लेयर के पास 2 है एक्शंस, यानी प्लेयर 1 प्लेयर 2, मैं स्ट्रैटेजी प्रोफाइल बनाने की बात कर रही हूँ, प्लेयर 4। ठीक है, हर एक के पास 2 एक्शन है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो कितने बन गए? इट्स 2 into 2 4 4 8 and 16, तो 16 स्ट्रैटेजी प्रोफाइल्स बनेंगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट मेक इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, वी हैव टू मेक इट इज एन स्ट्रैटेजी प्रोफाइल फॉर्म। एंड रिमेंबर कि 2 जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ए को और 2 सपोर्ट कर रहे हैं बी को। सो लेट्स मेक इट। सो पहला हो सकता है वोट 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 एंड वोट, दूसरा हो सकता है वोट 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 एंड डू नॉट वोट, एन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको इसको ये देखिए कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि यहाँ पर तो 2 बंदे जो हैं वो ए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 जो हैं वो बी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी प्रोफाइल जो है वो ये होना चाहिए वी वी एन एन। ऐसा नहीं है, बेशक वो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो वोट करें या ना करें। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने वोट करना है, they have option of voting and not voting. So we are assuming that there are 4 people, 2 are supporting A and 2 are supporting B, but इस वाले strategy profile में 3 of them are voting and 1 is not. फिर इसके बाद देखो n को मुख्तलिफ जगहों पे रखने का कोई फायदा नहीं है, it is the same analysis, so I'm not wasting time. I will write the next one in which I will write 2v and 2n's. ठीक है, places does not matter, places does not matter. Last में मैं लिखूंगी v n n and n, and the last one would be n n n and n. Okay, so let's have analysis that कौन सा वाला नैश होगा. So I'm starting with the first one, 3 4 and 5, और for simplicity we are assuming कि जो पहली 2 places है ना वो हैं जी A के सपोर्टर्स, और जो लास्ट 2 places है ना वो हैं B के सपोर्टर्स। ठीक है, अब पहले केस के अंदर क्या हो रहा है? पहले केस में ये हो रहा है कि ए के जो 2 सपोर्टर्स थे उन्होंने भी वोट किया और बी के दोनों सपोर्टर्स ने भी वोट किया। सो एक्चुअली दोनों 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 कैंडिडेट्स के 2-2 वोट्स हैं, तो ये रिजल्ट क्या है? ये है टाई। ठीक है, अब हम पहले ये चीज देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? ए के 2 सपोर्टर्स ने वोट किया हुआ है और बी के 1 सपोर्टर ने वोट किया और 1 ने नॉट वोट किया, तो ए के पास 2 वोट्स आ गए और बी के पास सिर्फ 1 वोट आया, तो बेसिकली यहाँ पर ए विन करेगा। ठीक है, इसमें देखो इसके दोनों वोट ए के आए में बी का कोई वोट ही नहीं आया हुआ, यहाँ पे भी ए विन करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है वो वेट अ मिनट, इसके अंदर पोजीशन भी मैटर करेगी कि कौन सा वाला जो है वो ए को वोट कर रहा है, कौन सा बी को वोट कर रहा है, तो मुझे सारे स्ट्रैटेजी प्रोफाइल लिखने पड़ेंगे। सो जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, मैं इसको इरेज करके दोबारा से आई विल स्टार्ट विद द न्यू वन, जिसके अंदर मैं सारी स्ट्रेटजी प्रोफाइल लिखूंगी। इसके अंदर जो है ना पोजीशन भी मैटर करेगी, क्योंकि पोजीशन जो है वो नंबर ऑफ सपोर्टर को बता रही है ए और बी के लिए, तो मुझे पूरे लिखने पड़ेंगे। सो जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट, या आई एम राइटिंग इट नाउ। 16 प्रोफाइल मुझे सारे लिखने पड़ेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके गो डाउन, तो ये फंस जाता है। 10 के बाद 11
12, 13, 14 एंड देन फिर वही बात। पंद्रह, उसके बाद 4, एंड 16। ऊपर चलते हैं फिर से। ओके ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो मैं इसको लिखना शुरू करती हूँ। V V V V, ये हो गया पहला। थोड़ी सी लाने लगा देती हूँ इस तरह से ना, ज़रा क्लियरली नज़र आ जाएगा क्या हो रहा है। इसके बाद है अच्छा जी, अब आते हैं वापस। V V V N V V N V V N V V, और फिर आएगा N V V एंड V। ठीक है, ये हमारा इसका 3 V और एक N का सेट कंप्लीट है। अब मैं करूँगी 2 V और 2 N। ठीक है, 2 V 2 N, V N N V N N V V N V N V V N V N, ये 6 बन गए। 1 2 3 4 5, एक और होना चाहिए। V V N N V N N V N N V V। ठीक है, तो ये 6 बनते हैं। 1 2 3 4। ठहरो, इसको ये पता चल जाएगा, लास्ट से पहले बनाते हैं। आसमान ये वाला, ये आसान होगा। यहाँ पे N N N और N, और यहाँ पे क्या आएगा N, ये वाला आएगा जी क्या आएगा 1 वोट और 3 N, 1 वोट और 3 N। ठीक है, और फिर ये वाला जो है ना इस तरह से मूव करेगा N V N N। किस समय बनाती हूँ, आई स्टार्ट लाइक जिस तरह 1 वोट और 3 नो है ना, तो आई जो अलग वाली चीज़ होती है ना, जैसे 1 वोट है तो आई मेक श्योर दैट आई पुट इन द फर्स्ट प्लेस एंड देन आई कीप ऑन चेंजिंग द प्लेस। So I'll put in the first place, then I'll put in the second place, then I'll put in the third place, and then I'll put in the fourth place। तो इससे सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो जाते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट क्या बनेगा N N V और N, और आखिरी मेरा क्या बनेगा N N N और V। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर एक केस बचा हुआ है जो कि मुझे देखना है कौन सा वाला बनेगा। ये 2N 2N और 2N, ये तो प्लेसेस चेंज होगी। फिर N V N N V N V V N V N, और कौन सा बन सकता है V N V N N V V N N V N V V N है, N V V N नहीं है, वही बचा हुआ है N V V N, ये रह गया था। तो ये बेसिकली ये जो 6 है ना, ये है जिसमें के आपके पास 2 V और 2 N है, और ये जो 4 है इसके अंदर कौन कौन से हैं 3 V 3 N और 1 V और एक फिर ये अलग से है। तो बेसिकली ये जो है
ठीक है, तो ये हमारे पास 16 स्ट्रैटेजी प्रोफाइल्स पूरे हो गए। अब हम इसको चेक करते हैं कि किस में क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एंड रिमेंबर कि मैंने इसको पोजीशन को ऐसे सेट किया हुआ है कि जो पहले दो है ना, पहले दो वो जो है वो ए के सपोर्टर्स हैं और जो दूसरे दो हैं वो बी के सपोर्टर्स हैं। इस बात को जहन में रखें और देखें कौन जीत रहा कौन हार रहा है इसमें। अच्छा, पहले वाला केस जो है ये वाला, ठीक है, इसमें मुझे आई नीड टू हैव अ लाइन। मैं जरा इसको ट्राई कर लेती हूँ लाइन को। चल, ये ठीक है, कुछ लाइन तो आ गई। अच्छा, अब ये देखो कि ये है पहला केस। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस के अंदर सारे के सारे वोट कर रहे हैं, तो ये टाई केस है, इसमें टाई हो रहा है। ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है, 2 वोट आए ए के और ये जो है 1 वोट आया बी का, तो इसमें ए विन कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 वोट आए हुए हैं ए के और 1 वोट आया हुआ है बी का, इसमें भी ए विन कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 वोट आया ए का, 1 नॉट वोट है और 2 आए हुए हैं बी के, तो इसमें कौन विन करेगा, बी विन करेगा। इसमें क्या हो रहा है, एन वी वी वी, एक आया वोट ए का और 2 वोट आए बी के, तो इसमें भी बी विन करेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों वोट आए हैं और दोनों ए को आए हैं, तो ये ए विन कर रहा है और बी को नहीं मिले वोट्स। और इसमें क्या हो रहा है, वी एन वी दोनों के पास एक एक वोट है, टाई पोजीशन है। इसमें क्या हो रहा है, एन नो वोट वोट वोट, ये यहाँ पे बी विन कर गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एन वी एक वोट ए के पास, एक वोट बी के पास, टाई पोजीशन। ये क्या हो रहा है, वी एन फिर टाई पोजीशन। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एन वी एन टाई पोजीशन। Remember, first 2 places are for the candidate of A and last 2 places are for the candidate for B. N V, एक ही वोट पड़ा और वो पड़ा B को, B wins. N B wins. N A wins. V एक ही वोट पड़ा और पड़ा A को, A wins. अब चेक करो लास्ट में क्या है, क्या है, किसी ने वोट नहीं डाला, क्या हुआ, कहाँ गया पेन, ये टाई। ओके, गिवन दैट वी हैव टाई एंड वी हैव विन एंड ये सारा, अब हम देखते हैं आउटकम क्या आएंगे। अब हम देखेंगे क्या कि आउटकम क्या आएंगे। मैं फिर एक और लाइन बना लेती हूँ।